So the topic that we are going to discuss is known as kinetic theory of gases. Now, in this particular chapter, we are going to study about gas and many things related to gas. First thing that you need to understand is that gas is made up of tiny molecules or tiny particles, you could say. And these particles are continuously in random motion. But you already know this particular thing from your school itself. The gas is made up of tiny particle, etc., etc. Many simple things you have already studied. Now, Yes. let's try to understand a scenario. You have a gas or you have a container, and in this सर container अभी you have चैप्टर चालू gas. किया ना. Yes, you have gas. Now this particular gas का एक मॉलिक्यूल है ना, उसके ऊपर फोकस करते हैं. Let us try to calculate potential energy possessed by this particular molecule. Now you know mass of a particle या फिर mass of the molecule is very small. तो जो भी मैं mass put करने वाला हूँ, that particular mass is very small. तो mass क्या है? It is very small. And h is obviously height na, from the ground. Let's say this is the height that I am talking about. But as mass of this particular object is very small, we can conclude that potential energy itself is very small. क्योंकि mass small है तो potential energy भी small हो जाता है. And that is why potential energy becomes insignificant in comparison to the other energy, that is kinetic energy. Ritik, I cannot see your video output. हाफ एम वी स्क्वायर. तो हाफ एम वी स्क्वायर क्या होता है वो आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ. सिंपल सी चीज है, हाफ इनटू मास का वैल्यू पुट करोगे. आई नो दैट मास इज वेरी स्मॉल, सो यू विल से सर यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी इग्नोर कर दो. बट वेलोसिटी possessed by gas molecule is so fast, that is वेलोसिटी जो होता है ना गैस मॉलिक्यूल के पास, वो इतना ज्यादा फास्ट होता है कि काइनेटिक एनर्जी becomes very much significant. काइनेटिक एनर्जी को इग्नोर नहीं कर सकते. ओके वाला. तो पोटेंशियल एनर्जी कैन बी इग्नोर्ड बट काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट बी इग्नोर्ड. And that is why we conclude that gases do possess what we call as kinetic energy. तो gases के पास सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी कंसिडर करते हैं. एंड एज वी आर टॉकिंग अबाउट काइनेटिक एनर्जी, द चैप्टर का नाम इज काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस. So we basically say that any gas has kinetic energy. Okay. Last 2 minutes for those who have not turned on the camera. After that, I will start removing you. Chalo. Let's begin with this particular chapter. We are gonna ignore those parts that have been deleted, and we are gonna do only those parts that are there in the syllabus. तो स्टार्टिंग वाली चीज की जरूरत नहीं थी. आपको सिर्फ ये याद रखना है कि गैसेस के पास सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है. इवन दो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन, आई कैन स्टिल सी यू. ओके. क्योंकि मैंने दूसरे मोबाइल में लॉगिन कर दिया है, तो वहाँ पे मुझे आपका फेस दिख रहा है. Now let's talk about some simple things, that is KTG, kinetic theory of gases, etc. There is one more thing that you need to understand. यहाँ पे एक नोट लिखते हैं. नोट, gases only possess kinetic energy. Let's now talk about first law known as Boyle's law. Already studied it in chemistry. That is, pressure is inversely proportional to volume provided that temperature is equals to constant. But when the temperature is constant, this process is also known as, whenever temperature is constant, the process is known as, क्या बोलते हैं उसको? Isothermal. Yes, it's isothermal process. So for isothermal process, pressure is inversely proportional to volume, and whenever something is inversely proportional, we can write 1 2 ka 2 1. So that is why it becomes P1 by P2 equals to V2 by V1. उल्टा हो जाता है. And we can also do cross multiply. See, I have done cross multiply at this step. P1 V1 becomes equals to P2 V2. Now we are done with Boyle's law. Next, now talk about Charles' law. Okay. So according to Charles' law, volume is directly proportional to temperature provided that pressure is constant. And whenever something is directly proportional, then we can use 1 2 ka 1 2. That is V1 by V2 becomes equals to T1 by T2. As simple as that. यहाँ पे देखो, यहाँ पे उल्टा हो रहा है. 1 2 का 2 1 हो रहा है. P1 by P2 equals to V2 by V1. Let's now talk about third law.
आपको इसको जैसे प्रोनाउंस करना है करो. I know when I pronounce you will start laughing. So pressure is directly proportional to temperature provided that volume is constant. And since it is directly proportional, we can write P1 by P2 equals to T1 by T2. So whenever something is directly proportional, देखो क्या हो रहा है 1 2 का 1 2. Very easy thing. 1 2 का 1 2. यहाँ पे देखो क्या हुआ 1 2 का 2 1. Now these are the three laws that I want you to remember by now itself because they will be useful in so many cases. If you already know, heard about them in chemistry, right? Yeah. Yes, sir. पोटेंशियल एनर्जी में हाइट सिग्निफिकेंट नहीं होता क्या गैसेस के? कंपेयर कर, लाइक हाइट लेके कितना लेगा 2 मीटर 2.5 मीटर कितना, मतलब लाइक it does not matter. But if you see the velocity of gases ना, it is too fast. मतलब जो गैस का मॉलिक्यूल का वेलोसिटी होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है. फॉर एग्जांपल फॉर ऑक्सीजन दैट वेलोसिटी इज 497 मीटर पर सेकेंड. नाउ ट्राई टू डू इट स्क्वायर, तो तुझे पता चलेगा मैं कितने बड़े नंबर की बात कर रहा हूँ. सो दैट इज व्हाई देन काइनेटिक एनर्जी बिकम सिग्निफिकेंट, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में v स्क्वायर है. इज इट क्लियर? ओके राघव. Ashwin cannot see your video output. Raviraj, Raghav Gohil, Adnan, Sharon. Good morning, sir. बोलो ना मैम. Good morning. Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Okay, चलो let's start. हाँ बोलो ना मैम. चैट डिसेबल करके रखिए आप. Okay. हाँ. Okay, Maitri. But usually ना you should be ready before lecture only. फिर आप लेक्चर ज्वाइन करके सोचते हो कैमरा ऑन करना है. पहले माइंडसेट क्यों नहीं बनाते कि कैमरा ऑन ही करना है. ओके चलो लेट्स कंटिन्यू गाइस. So what happens if I try to combine these particular laws? Kashish, camera on kar. What happens if we try to combine these three laws? That is, pressure PV is directly proportional to temperature. अभी ये combine छोड़ दो ना यार. आपको पता है PV equals to nRT करके law होता है. Remember this? Yes, sir. Ideal gas equation. So let's try to understand this. If we eliminate this N and R, क्योंकि उनको constant consider किया, so we can write that PV equals to constant into T. तो मैं T को वो साइड लेके जाके लिख सकता हूँ PV upon T equals to constant. And since this particular thing is constant, you can write it as P1 V1 by T1 equals to P2 V2 by T2. Okay. So this is a simple statement. P1 V1 by T1 equals to P2 V2 by T2. Now there is something in mathematics, something in chemistry that you have studied known as number of moles. Can anyone tell me the formula of number of moles? Vaishnavi, can you tell me formula of number of moles? Vaishnavi? Mass. Mass upon? Mass upon molar mass. हाँ वो बोल रही थी रे, बेचारे को बोलने भी नहीं दिया. ठीक है, I got you, you got it. So एक फॉर्मूला तो होता है mass upon molar mass, and the second formula is number of molecules upon Avogadro number. So we can write these two combined formulas. We need these formulas for solving numericals of this chapter. तो यहाँ पे Na जो होता है that is Avogadro number, it is 6.023 into 10 raised to 23. And obviously molar mass you already know. What is molar mass of hydrogen? Gas. One. Hydrogen gas. होगा सर. Gayatri, what is it? Hydrogen gas. Gayatri Mane, what is hydrogen gas का molar mass? नहीं बता. One, but one तो is for hydrogen only. H2 होता है ना hydrogen gas. Guys, ऐसे कैसे गड़बड़ करते हो? Hydrogen gas is H2. हाँ तो it is 2. अरे 1, अरे मजाक. एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 हाइड्रोजन का 2 होगा. तनिष बोल रहा है
जयेश कैमरा में आउटपुट नहीं दिख रहा है, फ्रंट कैम ऑन कर, बैक कैमरा ऑन किया है तूने. Now let's move on to next one, that is Boltzmann constant. Now there is one very interesting constant. According to the scientist Boltzmann, if you take ratio of R and Na, that is R is universal gas constant and Na that is Avogadro number, you get Kb, a new constant known as Boltzmann constant. But I like to remember this formula as NAK. तो R equals to NaK, NaK. तो मुझे याद रहता है R equals to NaK, NaK. Na का वैल्यू होता है 6.023 into 10⁻23. बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू होता है 1.38 into 10⁻⁻20. तो पहली चीज तो this +23 and -23 gets eliminated and when you multiply these two you will get what we call as 8.314, and this is the value of universal gas constant. So this is the value of universal gas constant. Now let's talk about ideal gas and real gas. Ideal gas में obviously it obeys the equation of PV equals to nRT, है ना? Then intermolecular Sir. interactions. हाँ बोलो. ऊपर का फिर से बताओ. कौन सा वाला? एक बोल्ट्जमैन करके साइंटिस्ट था, उसने क्या बोला कि इफ यू टेक रेशियो ऑफ R and Na, ओके, तो अगर आप R और Na का रेशियो लोगे तो आपको मिलेगा एक कांस्टेंट जिसको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलते हैं. तो मैंने Na को ये साइड भेजा तो R becomes Na into Kb. शॉर्टकट के लिए मैंने बोला ये नाक के तरह याद रख सकते हो, तो R इक्वल्स टू नाक होता है. तो मैंने बोला Na का वैल्यू पुट करो 6.023 into 10⁻23, Kb का वैल्यू 1.38 into 10⁻23 plus 23 minus 23 cancel. When you multiply them together, what will you get? You get 8.314. जो भी है वैल्यू वो आ जाता है. अभी समझा? हाँ सर. Okay. Jayesh, I'm gonna remove you. Jayesh Shah. वो अदिति का डेडिकेशन देखो, बेचारी ट्रैवलिंग कर रही है फिर भी उसने कैमरा ऑन किया है. गुड गुड. नहीं तो मेरे को ऐसे मिल जाते हैं, बोलते सर ट्रैवलिंग कर रहे कैमरा ऑन नहीं करेंगे. इट्स अ नाइस थिंग. चलो आइडियल गैस एंड रियल गैसेस. तो आइडियल गैस में क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस आर एब्सेंट. दैट इज मतलब मॉलिक्यूल है ना, जब कोलाइड होते हैं तो उनका इंटरैक्शन नहीं होता ज्यादा. नो रियल गैस इज ट्रूली आइडियल. मतलब कोई भी गैस ले लो, हाइड्रोजन ले लो, ऑक्सीजन ले लो, नाइट्रोजन ले लो, वो जो भी गैस लेना है ले लो, दैट इज नॉट एक्चुअली आइडियल. बट वी कैन कन्वर्ट एनी रियल गैस इनटू आइडियल गैस. डू यू नो, आपने केमिस्ट्री में सुना है क्या? किसी भी रियल गैस को आप आइडियल गैस में कन्वर्ट कर सकते हो. फॉर दैट यू नीड टू एडजस्ट प्रेशर एंड टेम्परेचर. कैन यू टेल मी हाउ विल यू बी एबल टू अचीव इट? Real gas to ideal gas, that conversion, how will you be able to achieve it? नहीं बता. रियल गैस कोई भी गैस लॉस को ओबे नहीं करेगा ना. हाँ नहीं, अगर ऐसे देखे जाएगा तो या क्लोजर टू देम इट ऑबेज, बट एग्जैक्ट ऑबे नहीं करता गैस लॉस को. बट हम लोग जब स्टडी करते हैं ना, देन वी कंसीडर एवरी गैस एज आइडियल गैस. दैट इज अभी बाजू में एयर है, एयर में नाइट्रोजन है, वी इवन कंसीडर दैट नाइट्रोजन इज आइडियल गैस इवन दो इट इज नॉट. अच्छा सुनो, फॉर यू टू कन्वर्ट एनी गैस इनटू और एनी रियल गैस इनटू आइडियल गैस, you need to increase temperature so high and decrease the pressure so low. So you can, if you increase the temperature of the gas to a certain high value and उसका pressure अगर समझो आपने low कर दिया तो आपको मिलेगा what we call as ideal gas. This is very important for MCQ. MCQ के लिए important है, 1 marks के लिए आ सकता है. Okay, now let's now move on to next concept. Have you guys seen this ugly looking equation before? Yes. Van der Waals equation. अरे आपने CET वालों ने सुना है? मैंने सेम क्वेश्चन नीट बैच में पूछा, नहीं बोल रहे, नहीं सुना मैंने JEE में देखा था. हाँ ओके.
सही बोलो। ये सीईटी वालों को नहीं हुआ है ना ये? नो सर। अपने को चाहिए भी नहीं, अपने को पढ़ना भी नहीं है, जस्ट मैंने नॉलेज के लिए लिखा है, एक्स्ट्रा चीज है, रट्टा मत मारो। ओके, फॉर एनी रियल गैस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, इट ओबेज दिस इक्वेशन, जिसमें अभी आप देखो A एंड B आर कॉन्स्टेंट्स। ओके, बाकी सारी चीजें सेम है, n नंबर ऑफ मोल, P प्रेशर, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, अश्विन, प्रियंका, ये सब लोगों ने क्यों बाबा कैमरा बंद रखा है? व्हाट इज योर एक्सक्यूज? और ये बाबू किसने कौन है भाई? अपना नाम चेंज करके आया करो ना। दानिश, दिवेश, बहुत सारे लोगों ने कैमरा ऑफ रखा है रे, तो बैक स्क्रीन पे ही रहना चाहिए। सर आपके दूसरे अकाउंट को को होस्ट बना दो ना। बट को होस्ट कैसे बनाते हैं? यहाँ पे देख, अभी मैं गया और वो दूसरा सर अकाउंट को, नाम है ना आपका PTM, उस पर क्लिक करके पोस्ट कर दो। बट वो मेक होस्ट है, उसमें मेक को होस्ट नहीं आता, फिर मेरा होस्ट चला जाता है। ये सर 40 मिनट वाला है ना? नहीं, पता नहीं सर, ठीक है। हाँ, इन लोगों को मेरे को ना धीरे धीरे रिमूव करना चालू करना पड़ेगा, तभी इनको समझेगा कि हाउ सीरियस आई एम अबाउट वीडियो, अदरवाइज नहीं सुनेंगे। कौन कौन है? श्रेया, शरण, आदित्य, भावेश। ठीक है, लास्ट 2 मिनट्स फॉर यू। चलो, एजम्पशंस ऑफ केटीजे। अभी एजम्पशंस ऑफ केटीजे है ना, ये भी इंट्रोडक्शन के अंडर ही आता है, बट यू शुड नो व्हाट एग्जैक्टली काइनेटिक थियरी ऑफ गैस इज अबाउट। मतलब पूरा चैप्टर पढ़ोगे और इंपॉर्टेंट चीजें नहीं पढ़ेगी तो क्या मजा आएगा? So we need to study few assumptions that are related to KTG, that is kinetic theory of gas. First thing is nature of gas molecule. It tells you how that particular gas molecule looks like. ओके, वो आपको पता है, वो जब लड़की देखने का प्रोग्राम होता है, कार्यक्रम होता है, तो पहले ना वो लड़की के घर जाते हैं, फिर देखते हैं कि लड़की दिखने में कैसे दिखते हैं, ओके, बाल कैसे हैं एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। सेम वे ओवर हियर वी फॉर गैस मॉलिक्यूल वी टेक इट्स नेचर इनटू कंसिडरेशन। ओके, नेचर मींस उसको देखते हैं हम लोग कि कैसा दिखता है वो, या फिर क्या होता क्या है वो। So in this thing you will understand few simple things like gas consists of large number of tiny particles called molecules. ये बच्चों वाली बात है। Second, the molecules are rigid and perfectly elastic spheres. Rigid means you cannot change its shape no matter how much force you apply. So आप अप्लाई करते जाओ, आप मॉलिक्यूल को क्रश करने की कोशिश करो, बट मॉलिक्यूल क्रश बिल्कुल नहीं होने वाले हैं। तो मॉलिक्यूल कैसे होते हैं? रिजिड होते हैं। अभी परफेक्टली इलास्टिक स्फीयर क्या है वो बाद में डिस्कस करते हैं। स्फीयर है वो समझो, एंड वेरी वेरी स्मॉल इन डायामीटर। तो उनका ऑब्वियसली यार, अभी तू कुछ टाइनी बोल रहा है तो स्मॉल इन डायामीटर ही होंगे ना। नेक्स्ट, all the molecules of same gas are identical in shape, size and mass. तभी समझो अपने पास एक स्फीयर वाला पार्ट अवॉइड करना है। नहीं, अवॉइड नहीं किया मैंने, स्पेरिकली होते हैं मॉलिक्यूल, ऐसे एज्यूम किया है, ऐसे एजम्पशन। नहीं समझा मैं क्या बोला? समझा सर। तो बोला एज्यूम चीज है, एग्जैक्टली ऐसे होगी, इट इज नॉट नेसेसरी। ओके, नाउ सी, all the molecules of same gas are identical in shape, size and mass. What is that? Like for example, if you have a container and in this particular container if we have hydrogen का gas, तो हर एक हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल होगा वो आइडेंटिकल होगा। मतलब ये H2 और ये H2 दिखने में, साइज में, शेप में, ओरिएंटेशन में सब सेम है। ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम। दैट इज every
every single one of them will be identical in nature. Next, ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनो. Actual volume occupied by the gas molecule is very small in comparison to actual volume occupied by the gas molecule is very small in comparison to the total volume occupied by the gas. तो जो भी एक्चुअल वॉल्यूम होगा ना गैस मॉलिक्यूल का, वो वेरी स्मॉल है इन कंपैरिजन टू टोटल वॉल्यूम. सर उसका मीनिंग क्या एग्जैक्टली? नहीं बता रहा हूँ मैं. बहुत टाइम ले लिया आपने, 5-10 मिनट्स. अभी कितना और स्विच ऑफ करके रखना है? जल्दी जल्दी ऑन करो कैमरा, नहीं तो मैं अभी निकाल रहा हूँ. चलो. और मैंने तो किया हुआ है ऑन, मैंने 5-10 मिनट्स लिखा था. अरे बाकी लोगों ने भी मैंने बोला है लिखा यार. था हाँ तो डैनिश तक तूने अभी ऑन किया सर. यहाँ पे आने के बाद. सर नहीं बन सर, मैंने अभी लिखा है. सर जिनके कैमराज ऑन है ना उनकी अटेंडेंस ही लगाती हूँ खाली. हाँ ऐसा कर दो. राघव ने भी कब से बंद करके रखा है. राघव किधर गए? राघव को लेक्चर अटेंड ही नहीं करना है. सर मेरा ऑन है सर. क्या राघव का? अभी तो मैं देख रहा था तो मेरे को तो नहीं दिख रहा है. अदनान का नहीं दिख रहा है. अच्छा दूसरा दो अकाउंट से लॉगिन किया तूने. अदनान आई एम रिमूविंग यू. भावेश रिमूविंग यू. Sharon removing you. Aditya Verma removing you. Vansh removing you. चलो. Yashasvi, you have to come back soon. Let's talk about this particular point, that is actual volume occupied by the gas molecule is very small in comparison to total volume occupied by the gas molecule. Okay, so let us take this as a vessel. Okay, अब इस vessel में let us take some gas molecule like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. This is total volume occupied by the gas molecule. एक मिनट, मैंने यहाँ पे उल्टा लिखा है शायद. नहीं बराबर है. Now what we are gonna do is that ये उसने total volume occupied किया करे. Now what I'm gonna do is that I'm gonna consider कि actual में कितना करेंगे, because gas molecules have large number of spaces between them. So what I'm gonna do is that I'm gonna club them together, 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 club them together. Now you will realize what I was talking about. This is actual volume. You can see that actual volume occupied by the gas molecule is very small in comparison to the total volume occupied by the gas molecule. Is it clear? समझा ये? हाँ सर समझा. Okay, very good. रुदिक कभी तो थोड़ा जल्दी उठ के प्रॉपर लाइक ऐसा बैठा कर, पूरा स्लीपिंग मोड पे ही है तू.
रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल। द मॉलिक्यूल्स, अच्छा ये तो हम लोग ने लाइक पता है लड़की देखने का कार्यक्रम चल रहा था, तो पहले तो हम लोगों ने देखा कि लड़की दिखने में कैसी है एंड ऑल दैट। अभी देखेंगे कि लड़की बोलने में कैसी है, क्या क्या मतलब लाइक चलने में कैसी है, पोस्चर कैसा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो हाउ शी बिहेव्स एक्चुअली, बड़ों से कैसे बात करती है। तो सेम वे हाउ गैस मॉलिक्यूल बिहेव्स, दैट वी आर व्हाट वी आर गोना स्टडी। ओके, तो पहले मैं नेचर देखा, लुक एंड ऑल दैट स्टफ। यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, यहाँ पे ये पढ़ने वाले हैं कि जो गैस मॉलिक्यूल है उसका मोशन कैसे होता है। तो फर्स्ट, द मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ रैंडम मोशन डूइंग कोलिजन विथ वॉल्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ देयर ओन। मतलब लाइक समझो एक ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल रैंडम मोशन कर रहा है इस डायरेक्शन में, दूसरा मॉलिक्यूल है रैंडम मोशन कर रहा है इस डायरेक्शन में। व्हाट इज गोना हैपन, ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल यहाँ पे कोलाइड ऑब्वियो। और अगर समझो आगे चल के आप ये मॉलिक्यूल देखो, ये मॉलिक्यूल बेचारा जा रहा है दीवार से टकरा रहा है, हाँ ऑब्वियसली व्हेन दे कोलाइड दे चेंज देयर डायरेक्शन। जैसे ये कोलाइड हुआ, इधर चेंज डायरेक्शन किया, इधर आया, फिर इधर आके ये मॉलिक्यूल से कोलाइड हुआ, फिर डायरेक्शन चेंज करेगा, फिर कहीं और जाएगा, फिर ऐसे मतलब दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग इन रैंडम डायरेक्शन। इट्स लाइक योर मुंबई लोकल। तो मुंबई लोकल में कैसा होता है, एक दूसरे से धक्का बुक्की चालू ही रहता है, कौन कौन से डायरेक्शन में जा रहा है किसी को पता ही नहीं। वो तो आप एकदम मॉलिक्यूल से दूर चले जाओगे पब्लिक से, तो आपको पता चलता है कि आप आपके स्टेशन पे पहुंच चुके हो, तब तक आपको पता नहीं चलेगा। सेम थिंग हैपन्स इन केस ऑफ गैसेस, दे आर कंटिन्यूअसली इन रैंडम मोशन। Because of this random motion, they collide with each other and they basically collide with walls also. The entire phenomenon is known as molecular chaos. Chaos is a ladder. बहुत कम लोगों को समझा होगा ये, ठीक है। Let's move on with the next topic. ये समझा रहे guys? First point. सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes. Now here comes the second point, and that is basic from 11th standard. These Sir. collisions, हाँ बोलो। सर मैं ये बोल रही थी कि आप जब लेक्चर एंड करेंगे ना, तो उसके बाद आप पहले देख लेना सब लोग लेफ्ट हो गए, क्योंकि कल ऐसा हुआ था कि 10 बजे तक स्टूडेंट्स टाइम पास कर रहे थे लेक्चर में। बाप रे, इतना? हाँ सर, कल सर का नेटवर्क इशू था तो सर चले गए थे ना, इसके लिए सब करते रहे। तो आप पहले सर सबको निकालना बाहर, उसके बाद फिर आप लेफ्ट करना सर। ओके ठीक है। अरे तुम लोग लेक्चर के बाद खुद निकल जाओ ना, अभी वो भी मैं करूँ। आपको इज्जत के साथ बाहर निकाले हम लोग अभी। ठीक है कोई बात नहीं मैम, आई विल डू इट। भाई गाना बजा रहे थे सब। हाँ ओके समझ गया, विल डू इट प्रिंस, निखिल, प्रेक्षा। अरे माय डियर, मैं दूसरे अकाउंट में है, मोबाइल हाथ में है मेरा, मैं देख रहा हूँ और मैं पीछे हूँ, मेरे को पता है कौन कब कैमरा ऑफ किया है। निखिल का भी ऑफ है। आगे चाय भेजू? हाँ नहीं ना, पक्का? अरे उठ के थोड़ा प्रॉपर तुम लोग मतलब मस्त थोड़ा फ्रेश होके बैठो ना। किसको चाहिए? पैसा भेज पहले। मी पैसा भेज दे पहले। यूपीआई आईडी पाठवा मला व्हाट्सएप पर, पाठवतो। I will send it to you, don't worry. तो ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट इज collisions are perfectly elastic, that is the momentum and kinetic energy of both are conserved. Do you remember in which chapter we studied it? Perfect elastic collision, perfect inelastic collision. Don't tell me elasticity, please don't tell me elasticity, please don't tell me elasticity. कौन से चैप्टर? किसने बोला है लॉज ऑफ मोशन? लॉज ऑफ, जिसने भी बोला करेक्ट बोला, डरता का एक को है, सही तो बोला तूने। तो लॉज ऑफ मोशन में हम लोगों ने पढ़ा था दिस पर्टिकुलर टॉपिक। व्हेन आई से द कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक, आई मीन कोलिजन के पहले कोलिजन के बाद में मोमेंटम इज कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो कंजर्व, व्हिच इज रेयर इन मेनी केसेस। लाइक फॉर एग्जांपल मैं क्या बोल रहा हूँ कि समझो अपने पास दो गैस मॉलिक्यूल थे, ओके, और ये एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, ओके। एक का वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है और दूसरे का है 4 मीटर पर सेकेंड। तो इनका जो भी सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी होगा,
कोलिजन करने से पहले, उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। समझो वो कंबाइंड 12 जूल आ रहा है। See, these numbers doesn't make sense, they don't add up because they are random number. Point logic याद रखो, कोलिजन होने के बाद they will move away from each other, आमने सामने कोलाइड होंगे, अपोजिट में जाएंगे, तो वेलोसिटीज इंटरचेंज होता है 4 मीटर पर सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा रे? 12 जूल ही होगा ना सर। हाँ, कंजर्व होगा। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि इन केस ऑफ गैस मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। और ऐसा रियल लाइफ में बहुत कम बार होता है। मतलब आप ना बॉल्स का एग्जांपल ले लो, rather than considering these as gas molecule, I want you to take them as what? I want you to take them as balls. So when we are talking about ball, what's gonna happen? तो बॉल कोलाइड होंगे एक दूसरे के साथ, एंड देन ग्राउंड के साथ फ्रिक्शन में एनर्जी लूज करेंगे। में एनर्जी लूज होता है। हाँ, बहुत जगह पे एनर्जी लूज होगा, टू बी ऑनेस्ट, एंड दैट इज व्हाई वी से कि ये जो कोलिजन है वो परफेक्टली इलास्टिक है क्योंकि कंजर्व रहता है। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन अ मॉलिक्यूल ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। हमने ये एग्जांपल लिया था, याद है? यहाँ पे कोलाइड हुआ बंदा, यहाँ पे कोलाइड हुआ, और यहाँ पे कोलिजन होने के बाद यहाँ तक आया, फिर कोलाइड हुआ, फिर डायरेक्शन चेंज, फिर कोलाइड हुआ, फिर डायरेक्शन चेंज, फिर डायरेक्शन चेंज, फिर डायरेक्शन चेंज, so it keep on changing, but in between two collision, that is समझो A लोकेशन A लोकेशन पे कोलाइड हुआ, B लोकेशन पे फिर से कोलाइड होने वाला है, तो in between these two location molecule always travels in straight line। आप देख सकते हो ये क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है। सो दिस पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन को या फिर ये डिस्टेंस को हम बोलते हैं लैम्बडा या फिर फ्री पाथ। अभी समझो एक गैस मॉलिक्यूल है जो ऐसे बहुत सारे फ्री पाथ कर रहा है, जैसे ये लैम्बडा 1 है, लैम्बडा 2 है, लैम्बडा 3 है, लैम्बडा 4 है। कैन यू गाइस टेल मी? वापस से बताओ। कुछ नहीं, गैस मॉलिक्यूल इधर कोलाइड हुआ, फिर इधर कोलाइड हुआ, दो कोलिजन्स के बीच में वो सीधा ट्रैवल करता है। ये जो सीधा ट्रैवल करता है, द डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको लैम्बडा बोलते हैं। लैम्बडा का मतलब फ्री पाथ। क्लियर? यस सर। ओके, तो व्हाट आई एम सेइंग कि देयर आर मल्टीपल फ्री पाथ्स ओवर हियर। व्हाट इज कॉम्बिनेशन ऑफ दिस फ्री पाथ? या फिर अगर समझो मुझे एवरेज निकालना है या फिर मीन निकालना है, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? एनी आइडिया? Combining all alphas upon number of alphas. ऐड कर देंगे। हाँ, लाइक ए अल्फा नहीं है वो डियर, वो लैम्बडा है। Sorry, sir, कंबाइनिंग sorry, sir. ऑल लैम्बडास डिवाइडेड बाय n। ओके, बट यहाँ पे जो n होता है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं लेते, वो नंबर ऑफ कोलिजन्स लेते। यहाँ पे जो n होता है ना, वो नंबर ऑफ लैम्बडास नहीं लेते, नंबर ऑफ कोलिजन्स लेते हैं। कुछ तो रूल है, तो नंबर ऑफ कोलिजन होता है ये नीचे। तो आई कैन शो यू द फॉर्मूला, एंड दैट फॉर्मूला इज दिस। n डैश क्या है? नंबर ऑफ कोलिजन, कितने कोलिजन्स हुए वो। देयर इज वन मोर फॉर्मूला फॉर दिस, एंड दैट इज 1/√2 पाई d स्क्वायर n बाई v। नाउ ये फॉर्मूला एंड ये कंसेप्ट आपके सिलेबस से डिलीटेड है। फ्री पाथ का कंसेप्ट कोलिजन बिटवीन वॉल एंड अ मॉलिक्यूल में भी फ्री पाथ होता है। हाँ, वो भी कंसिडर करते हैं, इसलिए तो नंबर ऑफ कोलिजन्स लिया है। वो किसके साथ है वो बोला नहीं है, देखिए यहाँ पे मेंशन नहीं है, नंबर ऑफ कोलिजन्स जस्ट बोला है। तो किसके साथ भी होने दे, दैट डजंट मैटर। ओके, सुनो, ये जो फॉर्मूला है, ये जो कंसेप्ट है फ्री पाथ का, मीन फ्री पाथ का, ये आपके सिलेबस में नहीं है, डिलीटेड है। सर आपने क्यों पढ़ाया? बिकॉज आई थिंक यू शुड बी अवेयर अबाउट दिस पर्टिकुलर फ्री पाथ बिकॉज यू आर स्टडिंग बेसिक, है ना। और एक चीज इंपॉर्टेंट है कि ये जो है, ये जो फ्री पाथ है आपका, वो फ्री पाथ में मतलब समझो हम लोग एक गैस मॉलिक्यूल को कंसिडर कर रहे हैं ना, तो ये गैस मॉलिक्यूल देखो कैसे मूव कर रहा है, तो इट इज मूविंग लाइक दिस। तो ये जो मोशन कर रहा है, वी कॉल दैट मोशन एज ब्राउनियन मोशन। हैव यू हर्ड अबाउट दिस मोशन बिफोर? Yes, sir. यस। हाँ, तो वही है, केमिस्ट्री वाला मोशन है। और ये लेफ्ट साइड में क्या बनाया है? लेफ्ट साइड में जो पिक्चर है उसको हम लोग बोलते हैं स्टॉप मोशन। लाइक वीडियो को पॉज कैसे करते हैं, वैसे मॉलिक्यूल्स को हमने पॉज कर दिया है।
ना, वो आपके बोलने से पॉज नहीं होने वाले, यू कैन नॉट डू दैट। बट लेट्स से अपने वीडियो को जैसे पॉज करते हैं वैसे ही मॉलिक्यूल को पॉज कर दिया, एंड आई हैव पॉज दिस मॉलिक्यूल्स टू गेट दिस पर्टिकुलर थिंग एज फाइनल आंसर। सर ये बाजू वाली का नाम क्या बोले आपने? स्टॉप मोशन या फिर स्टॉप एक्शन फोटोग्राफ। नो सर, दिस और वन ये लाइक वाले ब्राउनियन मोशन। यस सर। ओके, वेरी गुड। तो ये स्टॉप कैसे हो जाता है? कौन सा वो स्टॉप? just हम imagination है। एज्यूम कर रहे हैं, वो स्टॉप नहीं होते कभी, वो जस्ट हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, वो ऐसे टाइम पास है यार। ये मैं तो बोल रहा हूँ, ये देना ही नहीं चाहिए था, इट इज सो अननेसेसरी। मतलब वो डिस्टिंग्विशली बताना चाहते थे कि मॉलिक्यूल कैसे मूव कर रहा है, सो दे इंट्रोड्यूस्ड इट, बट सर वो बिकॉज ऑफ ब्राउनियन मोशन का डायग्राम नहीं समझा, आप कुछ समझाओगे? नहीं। हाँ, ये देखिए मॉलिक्यूल है, ये इधर जा रहा है, इधर पे कोलाइड हुआ, उसने पाथ चेंज किया, इधर पे कोलाइड हुआ, पाथ चेंज किया, कोलाइड हुआ, पाथ चेंज किया, कोलाइड हुआ, पाथ चेंज किया, कोलाइड हुआ, पाथ। सो वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल मॉलिक्यूल जिसका पाथ चेंज हो रहा है। क्या अभी समझा? यस सर, समझा। अरे ब्राउनियन माने रैंडम बेसिकली, तो रैंडम मोशन की ही बात कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट वन, सर लेट जो अस ट्राई। डिलीटेड है उसको हाईलाइट कर दो ना, मतलब समझेगा लिखने के टाइम। रिलेटेड करने के लिए तो देखो, एजम्पशंस ऑफ केटीजी का मेरे को याद नहीं आ रहा है रिलेटेड है कि नहीं, बट पर्सनली ये तो चाहिए। केटीजी का अगर एजम्पशन नहीं पता है आपको, केटीजी क्या है वो नहीं पता है, तो क्या फायदा। तेजस, हीर, प्रतीक, नानिश। सर एक सेकेंड। सर मैसेज भेजा है, देखो ना, 5 मिनट में। क्या भाई, तुम लोगों को सबको 5-5 मिनट जाना होता है रे। तुम लोग का ना हैबिट से चेंज करना चाहिए। एक दिन पेरेंट्स मीटिंग लेना चाहिए, 6 बजे तुमको उठाना कंपलसरी रखना चाहिए, फिर पता चलेगा तुमको। करेक्ट पुष्टि? यस ऑनेस्टली नो, ठीक है। नहीं, यू आर यॉर्निंग, दैट इज व्हाई आई आस्क यू। तो लाइक मैंने बोला पहले, मैंने बोला यस सर और बाद में बोला ऑनेस्टली नहीं हाँ उठाना चाहिए इतने बजे। हाँ, बट उठाऊंगा अगर आप प्रॉपरली नहीं बैठोगे रेडी होके तो। आप मतलब इन द सेंस आई एम टॉकिंग ओवरऑल। ओके, तो ये था आपका बेसिक एजम्पशंस। तो ये वाला जैसे वो बोल रहे हैं, ठीक है, अभी क्या बोलते हो? सर आप कितने बजे उठते हो? हम्म, आप कितने बजे उठते हो? 6 बजे इनफ हो जाता है अगर लेक्चर नहीं है तो, मतलब घर पे है तो। और अगर लेक्चर बाहर है तो 5-5 बजे भी उठना पड़ता है। सर जब बट लेक्चर नहीं रहता है तो 6 बजे लेक्चर नहीं रहता तो क्यों उठूं? व्हाई शुड आई वेक अप? सोते कितने बजे सर? फील्ड डे। सर तो Why are you संडे को interested in my आप personal life? No personal questions. Let's begin with the topic. Obtain सर the ये mean. पर्सनल कहाँ है सर? Obtain. It's very personal. How can you talk about my sleep like that? आज एटम स्लीप लाइफ। uh, obtain the mean free path of nitrogen molecules at 0 degree centigrade and 1 atm, that is atmospheric pressure. The molecular diameter of nitrogen is, अरे बट ये सिलेबस से डिलीटेड है तो क्या सॉल्व करके करोगे ना, ये सीईटी में आएगा ना बोर्ड में आएगा, छोड़ दो। वही वो फॉर्मूला यूज करना है और सॉल्व करना है इसको, बट इट इज हाईली अननेसेसरी ना, तो आई वाज लाइक कि क्यों पढ़ना है। ओके, let's talk about the lengthiest derivation of this chapter. Now over here I have shown it with old method, मतलब पुराने ख्यालों का solution है, but I am gonna update the notes and write new solution. Okay, अगर मैं पुराने ख्यालों के solution के हिसाब से जाता तो ये derivation complete करने के लिए मुझे 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 4 पेज लगता। I'll try to complete this derivation within 3 pages. Sorry, 2.5 or 3 pages. But like as I said, it's very huge topic. So that is why
लेट्स बिगिन। एन इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, 4 मार्क्स। ओके, I want you to write this derivation with me side by side. क्योंकि ये डेरिवेशन मैं 2 बार होमवर्क में देने वाला हूँ रिटर्न के लिए। Draw the diagram. I'll explain it to you. Draw the diagram first. Sir, done. Okay, very good. Such a dedicated person. So what I want you to understand over here is that we have a container. Okay, तो ये ना कंटेनर है अपना पूरा पूरा क्यूबिकल। ओके, तो कैसे लिखेंगे हम लोग डेरिवेशन को बिगिन करेंगे? विल राइट इट लाइक दिस, लेट अ गैस इज एनक्लोज्ड, एनक्लोज्ड या फिर ट्रैप है पूरा, एनक्लोज्ड इन अ क्यूबिकल कंटेनर या फिर क्यूबिकल वेसल, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट एज। तो अब अपने पास क्यूबिकल वेसल है, अगर आप इसका एरिया देखोगे, सरफेस एरिया, ओके, कितना होगा एक सरफेस का एरिया, S/F एरिया, सरफेस एरिया, व्हाट विल इट बी रे? ये वाला एरिया क्या होगा? अगर मैंने क्यूब का साइड L कंसीडर किया है तो व्हाट विल बी दिस एरिया? L square. हाँ, L स्क्वायर। व्हाट अबाउट वॉल्यूम? L cube. वेरी गुड, L cube. वेरी गुड, है मतलब पता है कुछ तो you got the idea. Now what we are gonna do is that we're gonna consider it like this, let molecule 1, so I'm gonna focus on a single molecule, okay, molecule 1 travels from one wall to another and then returns back after bouncing on other wall. जर्नी इमेजिन करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूँ? तो मतलब बेसिकली क्या हो रहा है कि आपका जो मॉलिक्यूल यहाँ पे था, वो मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ तक गया, दूसरे वॉल के ऊपर बाउंस किया एंड देन इट रिटर्न बैक। तो मॉलिक्यूल ने जाते वक्त, सिंस इट इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, आई हैव कंसीडर्ड इट इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, तो जाते वक्त उसने वेलोसिटी कंसीडर किया vx1 और रिटर्न आते वक्त वो वेलोसिटी है -vx1 नेगेटिव में, बिकॉज डायरेक्शन इज डिफरेंट। कैन यू टेल मी what is distance covered by the molecule? 2L. क्यों बाला? सर आप स्लाइड को ऊपर साइड का L तो आगे पीछे दो ना। हाँ, जाते वक्त उसने कितना लिया? L लिया, आते वक्त कितना लिया? L लिया, तो टोटल कितना हुआ? 2L। वेरी गुड, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। जाते वक्त L, आते वक्त L, टोटल 2L।
तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द मॉलिक्यूल इज 2L। अच्छा मेरे को एक बात, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन द टू सरफेसेस इज L इसके लिए ना। हाँ अरे जाते वक्त L डिस्टेंस, ये सर वो डिस्टेंस L है। एडजेसेंट वॉल में नहीं जाएगा क्या एजेस मतलब, फिर से बोल। एडजेसेंट वॉल। एडजेसेंट, अरे जाएगा ना। अरे मैंने एज्यूम किया है बड़ी। तेरे को किसने बोला कि मॉलिक्यूल एक्स में ही रहेगा? वो किसी का नहीं सुनता। एक्चुअली इनफैक्ट वी कैन नॉट प्रेडिक्ट वेयर इट विल गो आफ्टर कोलिजन, दैट इज द बिग इशू। एंड मतलब लाइक हमने एज्यूम किया है बहुत। अरे पूरा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस assumptions के ऊपर तो बेस्ड है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय मॉलिक्यूल इज 2L, जाते वक्त L, आते वक्त L। वेरी गुड गाइस, आई होप यू आर ओके विद दिस। समझा ये? Yes, sir. Now do tell me what will be the time taken by the molecule to complete this distance? कोई formula? And so normal speed is distance upon time. Excellent. Yes. Now we know speed is actually equals to distance upon time. तो स्पीड का वैल्यू, स्पीड लिया मैंने जानबूझ के vx1, मैं वेलोसिटी नहीं ले रहा हूँ, तो वी कैन राइट vx1 इक्वल्स टू डिस्टेंस 2L अपॉन टाइम t। टाइम को वो साइड लाएंगे तो हमें मिलेगा 2L अपॉन vx1। दिव्या तेरा कैमरा ऑफ है, मेरा ध्यान है। हार्दिक, मंथन, यश, गौड, क्रिश, मैत्री, तो ये आपको क्या मिला? ये आपको टाइम मिला। तो आपका टाइम तक तो हो गया, आपको समझा कि कैसे मैंने कैलकुलेट किया। नाउ x1 सर, x1 मतलब वो x पाथ में है उसके लिए। हाँ, वो अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहा है। अगर समझो अलोंग वाई मूव करता तो क्या बोलते हैं इसको? vy1 और vz1। इट्स एज इजी एज दैट। ओके, तो सो यू गॉट टाइम का वैल्यू 2L अपॉन vx1। अच्छा अभी आगे क्या करोगे हम, आगे क्या करेंगे हम लोग? अभी समझो मैंने वॉल के कोलिजन को यहाँ कंसिडर किया एंड वॉल इनिशियली इस वेलोसिटी से जा रहा है और उसका मास लेट्स कंसिडर m है, m स्मॉल m। कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द मोमेंटम ऑफ दिस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल? इनिशियल मोमेंटम mvx1 बिकॉज इट इज मास इनटू वेलोसिटी, बराबर। तो ऐसे करते हैं, लेट्स राइट इनिशियल मोमेंटम equals to mass into velocity। तो mass is, initial momentum को pi लिखते हैं, so that is pi m into vx1। let's talk about final momentum। फाइनल मोमेंटम जरा डायग्राम देख के मुझे बता सकते हो क्या होगा? देखो माइनस mvx1। माइनस क्यों? क्योंकि फाइनल वेलोसिटी देखो राइट टू लेफ्ट जा रहा है, करेक्ट। सो दैट विल बी माइनस vx1। तो ये m, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, आप मेरे साथ लिखना चालू करो। डेरिवेशन 2 बार लिखना है आपको, ये एक बार हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस mvx1। तो ये हुआ फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम डन, फाइनल मोमेंटम डन। कैन यू गाइज कैलकुलेट चेंज इन मोमेंटम? व्हाट इज चेंज? चेंज का मतलब क्या होता है? 2mvx1 होगा। बट फॉर अदर्स व्हाट इज चेंज? Final momentum minus initial momentum. एक्सेलेंट। तो चेंज इन मोमेंटम होता है फाइनल माइनस इनिशियल। सो लेट्स कैलकुलेट चेंज। क्या सर करूं? -2mvx1 होगा। नीचे
यस सर हो गया। हाँ तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? माइक देखो किसका अननेसेसरीली ऑन है। चेंज इन मोमेंटम, यश कैमरा, इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो अगर आप याद करके समझोगे तो फाइनल मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो हम लोगों को आया था माइनस एम वी एक्स वन, एंड इनिशियल का भी एम वी एक्स वन ही था। तो माइनस ऑफ माइनस विल बी प्लस एंड वी विल गेट माइनस टू एम वी एक्स वन। बट दिस निगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट जो मॉलिक्यूल है वो मोमेंटम को लूज कर रहा है। निगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? मॉलिक्यूल मोमेंटम को लूज। अभी देखो कोई भी चीज कोलाइड होएगी, कोलिजन के बाद अपना मोमेंटम ना मॉलिक्यूल लूज करेगा, किसी और चीज में उसको ट्रांसफर करेगा। तो व्हाट यू तेजस कैमरा। और मॉलिक्यूल्स अभी आएंगे क्या? बिकॉज आपने हाँ X1 दिया है इसके लिए। मैं सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहा हूँ अभी। यस आएंगे आएंगे, बट वो कैसा है, सिमिलरली का कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। शॉन कैमरा, negative sign indicates that molecule is losing its momentum। तो मॉलिक्यूल क्या कर रहा है? मॉलिक्यूल मोमेंटम को लूज कर रहा है। ओके, नेगेटिव साइन का मतलब यही है कि मॉलिक्यूल क्या कर रहा है? लूज कर रहा है। और अगर मॉलिक्यूल लूज कर रहा है तो गेन कौन करेगा मोमेंटम को? वॉल। हाँ क्यों? क्योंकि वो वॉल के साथ कोलाइड हो रहा है, बराबर ना। तो मॉलिक्यूल अपना मोमेंटम बाजू वाले वॉल को, जिसके साथ उसने धड़ाम किया, उसको दे देगा। Therefore, gain in the momentum by wall will be equals to plus 2m Vx1. See what I did, guys? Minus 2m Vx1 plus 2m Vx1. और ये जो गेन इन मोमेंटम है वो भी तो चेंज ही है ना, वो डेल्टा पी है, जस्ट प्लस साइन में है। प्लस साइन क्यों आया? क्योंकि वॉल गेन कर रहा है। ओके यस डेल्टा बी सर। डेल्टा। रोशन रिमूविंग यू, क्योंकि बहुत टाइम से तूने कैमरा ऑन नहीं किया। सर मैसेज तो डाला था, देखो तो कर तो। अरे इधर होस्ट वाला दिखता नहीं। 5 मिनट, 5 से ज्यादा हो गया। नहीं सर कम ही हुआ अभी। ठीक है, गेन इन मोमेंटम हो गया प्लस 2m Vx1। अच्छा, आपको न्यूटन का सेकेंड लॉ किसको याद है? न्यूटन का सेकेंड लॉ मोमेंटम वाला सर। मोमेंटम इज dv by dt। कुछ भी। चेंज इन मोमेंटम। F is equal to dp by dt। हाँ ये जिसने बोला करेक्ट है। हाँ उल्टा बोला। अरे वो जय नहीं आया क्या आज लेक्चर में? सर उसको ठीक नहीं है। वही मैं बोलूँ, उसका आवाज नहीं आ रहा है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट मतलब अपॉन में क्या आता है? टाइम आता है। चेंज इन मोमेंटम आ गया ऊपर, बट चेंज इन मोमेंटम कितना है अपने पास? 2mvx1। तो हम लोग क्या करेंगे? डेल्टा पी को सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2mvx1 आ गया। शायद हम लोगों ने टाइम भी कहीं पे निकाला है ना? हाँ सर, देखो 2l हाँ, upon vx है 1। हाँ तो इट वाज 2l अपॉन vx1। वेरी गुड। तो ये vx1 ऊपर चला जाएगा, ये 2 कैंसल हो जाएगा, और आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा f इज इक्वल्स टू, और लेट्स कॉल इट एज fx1 ना, क्योंकि हम लोग x1 मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। m vx1 स्क्वायर अपॉन l। क्या समझा मैंने क्या किया? ये केसर करेक्ट समझा? यस सर।
ओके वही तो मक्खी विक्की मुंह में जाएगी। यस सर। तो fx1 का वैल्यू x डन। अभी ये आपने क्या किया, एक मॉलिक्यूल के लिए कैलकुलेट किया ना, मतलब x1 एंड ऑल दैट। मतलब अगर समझो आपके पास n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है along x axis, that is for molecule 2 molecule 3, so we could say for all molecules, for क्या बोला, ऊपर करो ना स्लाइड जरा, देखना है। स्पीड बढ़ाना बड़ी, काय को इतना हल्लू हल्लू लिख रहा है। हो गया? हाँ सर। Okay. For all molecules along x-axis. Okay, for all molecules along x-axis, force is, मतलब अभी मैं नेट फोर्स निकाल रहा हूँ along x-axis। तो ये क्या करूंगा पता है, मैं सबका कॉम्बिनेशन कर दूंगा, दैट इज fx1 प्लस fx2 प्लस 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 प्लस। अच्छा एक बात बताओ, अभी fx1 ऐसा है तो fx2 कैसा दिखेगा रे? mvx2 स्क्वायर अपॉन। अच्छा तो समझो मैंने सबको ऐड कर दिया, तो कौन सा चीज कॉमन आएगा? मास और लैम्बडा। m upon l। अरे तुम लोग पहली बात तो वो उधर पाला लैम्बडा को अल्फा बोल रहा है, तू एल को लैम्बडा बोल रहा है, मतलब डिसाइड कर दो कि आपको मास नया और लैम्बडा सर। अरे लैम्बडा किधर कॉमन आएगा? एल है वो लैम्बडा किधर दिख रहा है, वही मैं बोल रहा हूँ। अरे शिट। vx1 स्क्वायर vx2 स्क्वायर प्लस 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 चलते जाएगा वो। तो ये हो गया आपका fx, हो गया आपका फोर्स तक। तो अभी ना मैं आपको थोड़ा रिकैप दूंगा, क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट 60% डेरिवेशन तक पहुंच चुके हैं। लास्ट 40% रिमेन्स, एंड दैट टू मैंने खत्म किया सिर्फ 2 पेजेस में। तो आई गेस आई वुड बी एबल टू फुल, और उसमें भी बीच में गैप बहुत छोड़े हैं नीट दिखने के लिए, अदरवाइज मतलब और कम में होता। ये आपका रिकैप। What we initially did is that we considered a container, and in this particular container what exactly happened, हमने इसका क्यूबिकल कंटेनर का सरफेस एरिया लिया L स्क्वायर एंड वॉल्यूम लिया L क्यूब। मैंने कंसिडर किया कि मॉलिक्यूल 1 ट्रैवल कर रहा है एक वॉल से दूसरे वॉल की तरफ, और वो रिटर्न आता है बाउंसिंग आफ्टर बाउंसिंग ऑन अनदर वॉल। तो लाइक लेफ्ट वॉल से राइट वॉल जाता है एंड बाउंस करता है। डिस्टेंस कवर्ड बाय मॉलिक्यूल बिकॉज ऑफ दैट विल बी 2l। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ से हम लोग टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं विच इज 2l अपॉन vx। फिर हमने इनिशियल मोमेंटम कैलकुलेट किया, फाइनल कैलकुलेट किया, फाइनल नेगेटिव इसीलिए आया क्योंकि वो लेफ्ट साइड जा रहा है। तो इनिशियल मोमेंटम डन, फाइनल मोमेंटम डन, चेंज इन मोमेंटम इज कैलकुलेटेड। आफ्टर दैट हम लोगों ने नोटिस किया कि निगेटिव साइन आता है। बोलो। आपने बोला था ना कि डायरेक्शन चेंज होगा, तो फिर वो बैक कैसे जाता हूँ? असम्पशन होता है नहीं नहीं ऐसा? नहीं नहीं, तो अरे नहीं, फिर डायरेक्शन चेंज करता है ना वो। इधर लेफ्ट हाँ, टू राइट जा रहा था, इधर बाउंस हुआ, अभी राइट टू लेफ्ट जा रहा है, डायरेक्शन मतलब चेंज किया है। वैसे मुझे लगा कि मतलब वो, नहीं मैं कुछ और ही समझी थी तभी। वो टेढ़ा भी जाएगा कब पता है, जब उसको इनिशियली ऐसा क्रॉस जाएगा ना तब ऐसा जाएगा। वो अच्छा डिपेंड है कि ओके उसका पाथ कैसा है। ओके तो ओके। समझा मैं क्वेश्चन समझा? ठीक है। तो ये नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट मॉलिक्यूल इज लूजिंग इट्स मोमेंटम। अगर मॉलिक्यूल मोमेंटम लूज कर रहा है तो कौन गेन कर रहा है? तो प्लस कर रहा है, बराबर। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो आपने मोमेंटम लिखा एंड टाइम लिखा, कैंसिल किया, कुछ ऐसा आया। अगर समझो मैं ऐसे एक्स एक्सिस पे जितने भी मॉलिक्यूल है उनके लिए मैंने ऐड किया, तो m/l कॉमन आता है एंड वी गेट दिस पर्टिकुलर स्टेप। तो ये आपको मिलता है fx। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा डू टेल मी व्हाट इज द हेडिंग? प्रेशर, एंड वी हैव नॉट कैलकुलेटेड प्रेशर येट, करेक्ट? तो हमने अभी यस तक सर। प्रेशर को टच ही नहीं फोर्स किया है। निकाल दिया सर, एरिया भी निकालेंगे तो हो जाएगा। वेरी गुड। तो फोर्स क्या, प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया।
तो लेट्स यूज दैट। रितिका तेरा बैक कैमरा ऑन है कब से? हाँ, अभी कैसा फ्रंट कैमरा ऑन हुआ बोलने के बाद तुरंत? वैसे भी तो अंधेरे में बैठे दिख तो कुछ है नहीं रहा, तो क्या फर्क पड़ता है फ्रंट ऑन करने को। नाउ लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट प्रेशर। माइक किसका ऑन है देखो जरा। लेट्स कैलकुलेट प्रेशर या फिर एवरेज प्रेशर। तो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर क्या हो जाएगा? प्रेशर विल बी फोर्स Fx अपॉन एरिया, दैट इज L स्क्वायर। अभी आपको याद है तो फोर्स जो Fx था वो हमने अभी निकाला, तो m/L Vx1 स्क्वायर प्लस Vx2 स्क्वायर प्लस 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 अपॉन नीचे क्या था? हाँ L स्क्वायर था ना। अभी वो ऊपर वाला L नीचे आके क्या मिलेगा? m अपॉन L क्यूब। शायद L क्यूब कुछ तो होता है। व्हाट इज L क्यूब? वॉल्यूम। तो आप चाहे तो इसको बाद में मॉडिफाई भी कर सकते हो। आप लिख सकते हो कि ये वॉल्यूम है, तो ये Vx1 स्क्वायर होगा, ये Vx2 स्क्वायर होगा, ये प्लस 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 होगा, बराबर। अभी आगे ध्यान से डेंसिटी आएगा क्या सर? हाँ बट ये अलग है। ये सुनो सुनो, अभी मत खाई मत करो। ये सिंगल मॉलिक्यूल का मास है। अगर डेंसिटी कब आएगा? जब मैं टोटल मास लूंगा। अरे एक मास से थोड़ी ना तो डेंसिटी डिसाइड करता है, समझ रहे हो? एक मॉलिक्यूल के मास से कैसे डेंसिटी निकालेगा? डेंसिटी के लिए यू रिक्वायर मल्टीपल मॉलिक्यूल्स। एम आई राइट? हाँ सर, एवरेज प्रेशर कैलकुलेट कर रहे तो टोटल मास चाहिए। टोटल मास चाहिए, तो अपन के पास टोटल मास नहीं है सर। कुछ भी करके टोटल मास लाना पड़ेगा। तो उसके लिए ना मेरे पास एक वेलोसिटी है। शायद आपने कहीं पे सुना होगा इसके बारे में आपने। This velocity is known as root mean square velocity. Have you heard about it? Root mean square. जाने दो, नहीं सुना है तो अभी सुनते हैं। We know that root mean square। तो पहली बात तो आपको वेलोसिटीज का स्क्वायर, उसके बाद मीन और उसके बाद रूट लेना है, समझा? स्क्वायर, मीन, रूट। तो ये तीनों चीजें आनी चाहिए। तो इट्स लाइक अ कॉम्बो पैक VRMS। तो ना VRMS का फॉर्मूला कैसे होता है पता है? इट इज लाइक दिस। देखो पहले बात तो Vx1 स्क्वायर Vx2 स्क्वायर, क्या स्क्वायर हो गया? यस ना? लो बोल ही नहीं रहे। अपॉन अगर समझो n लिया, दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो ये मीन हो गया। yes, अभी देखो अभी रूट ले लेंगे। क्लियर हुआ ये? यस सर। That is why it is root mean square velocity. This is such a simple name. If we square both sides, squaring both sides. Yeah, I know that derivation is lengthy, but trust me, ये बहुत easy way में explain कर रहा हूँ मैं. I could make this derivation much worse. And it is like 4 मार्क का क्वेश्चन है, तो अपने को तो करना ही पड़ेगा। अपॉन में क्या आता है? अपॉन में आता है n आता है। तो स्क्वायर होने के बाद n उधर जाएगा, so you will get nv square RMS equals to Vx1 square plus Vx2 square plus 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 plus. So where do you see this particular thing? देखा? yes sir. बराबर। तो अब बेसिकली आप क्या करोगे? आप ये जो VRMS है उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे। ओके अरे रुको एक मिनट, शायद मैंने एक जगह पे गड़बड़ कर दिया। हम लोगों ने फोर्स अलोंग एक्स लिया, बराबर। तो मुझे टोटल प्रेशर भी तो लाइक ऐसे लेना चाहिए ना, px px px। मैंने y का कैसे एज्यूम किया ऐसे? तो थोड़ा होल्ड पे रखते।
तो ये क्या करेंगे, इसको ना यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, ऐसा लिखूं क्या, लेट दिस बी लाइक 2 इक्वेशन 2 सब्स्टिट्यूट इन 2, ऐसा लिखूं स्टेप कि समझ जाएगा आपको? समझ जाएगा। तो लिख दो। Therefore, ठीक है, अरे डू वॉच दैट वीडियो, प्रीतेश सर ने जो डाला है ग्रुप में, उसमें नीरज चोपड़ा के थ्रो का पूरा हाँ कैलकुलेशन सर, दिया है। आपके स्टेटस पे भी देखा। सर वो फोटो भी देखा, अच्छा लगा। किसका फोटो? सर वो नीरज नीचे चोपड़ा वाला। का वो पूरा कैलकुलेशन का फोटो था ना, 29.311 कुछ तो उसका ये था इनिशियल वेलो फाइनल वेलोसिटी। नहीं इनिशियल था, बट वो उसमें क्या है, उसमें हमने एज्यूम किया था कि एंगल 45 डिग्री पे उसने फेंका, बट एक्चुअल में ही थ्रोड इट एट 36 डिग्री। तो मैंने करेक्ट एंगल लेके उसको सॉल्व किया है, मतलब लाइक एक्चुअल में जो उसने उसका रेंज था वो कैसे मिला एक्सेट्रा। अच्छा तो पीएक्स क्या? सर 45 पे तो सबसे ज्यादा जाएगा ना। तो उसने सर जब थ्रो अगर हर किया ना, प्लेयर एनालाइज कर पाता कि 45 पे कैसे मारना है तो फिर सब जीत जाते हैं। और नहीं एनालाइज कर, मतलब उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी भी तो मैटर करता है ना। फिर अगर सब 45 पे मार पाते तो जो सबसे ज्यादा इनिशियल वेलोसिटी यूज करता वो जीत जाता। बट अभी सीन कैसा है कि प्रॉब्लम ये है कि नोबडी इज एक्यूरेट, सो इवन इफ यू प्लान टू थ्रो इट एट 45 यू वोंट बी एबल टू थ्रो इट एट 45 एवरी टाइम। ओके, तो एक्यूरेसी नहीं है किसी का इतना कि सर और 45 पे जिसका थ्रो वर्ल्ड करे। रिकॉर्ड है उसने कितना मारा होगा, मतलब उसका 100+ है तो उसका कितना एंगल पे? वो बट 100 प्लस का जो रिकॉर्ड है इन दैट इन दोस डेज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द जेवेलिन वाज यूज्ड टू बी डिफरेंट। अभी सेंटर ऑफ मास डिफरेंट होने से उसके मोमेंटम पे बहुत डिफरेंट पड़ता है, तो इसीलिए वो 100 मीटर के ऊपर जाता था। द जेवेलिन दैट दे यूज नाउ डेज वो 100 मीटर के ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि उसका सेंटर ऑफ मास दूसरे पोजीशन पे है। सो वॉट एवर रिकॉर्ड दे हैड ना, लाइक वो तो वो ओल्ड रिकॉर्ड बोलते हैं, वो न्यू रिकॉर्ड्स में कंसिडर नहीं होते। गेटिंग इट? न्यू रिकॉर्ड आई गेस 90 प्लस है कुछ तो। सर वेटर 96 वेटर क्या है ना, कुछ तो वेटर नाम है उसका। आई डोंट हैव एग्जैक्ट आइडिया अबाउट, नहीं वेटर नहीं, उसके बाद किसी और क्या है, किसी और सर पर्सन नहीं का है दूसरा है। सर हाँ आप है ना चिरंजीवी का जैवलिन थ्रो देखो, आप फिजिक्स छोड़ दोगे। हाँ, वो देखा है मैंने उसके बाद मीम आना चालू हुआ था। आई एम वेरी अप टू डेट विद मीम्स। वो उसके वो जज लोग होते हैं उनके बेंच पे ही मारते हैं ना। किसका जैवलिन थ्रो था? किसका जैवलिन थ्रो? अरे वो हीरो है, चिरंजीवी नहीं है, अरे वो चिरंजीवी नहीं है, दूसरा हीरो है वो। सर चिरंजीवी है। नहीं अरे सर। नहीं चिरंजीवी नहीं है, चिरंजीवी दूसरा हीरो है। मे मतलब लाइक लाइक साउथ इंडियन मूवीज जो देखते हैं उनको ज्यादा बेटर पता होगा, बट चिरंजीवी इज डिफरेंट रे। चिरंजीवी मतलब वो इंदिरा द टाइगर वाला, हाँ ये सर मुझे डिफरेंट है, चिरंजीवी। ये हाँ डिफरेंट बोल रहे तू। वो ठीक मीम है, पे लिखा था इसके लिए मैटर सर। वो मीम वाले वो खुद भी डालते हैं, उनको खुद पता नहीं। अच्छा बट सुनो ना, मतलब इसने नीरज चोपड़ा ने जैवलिन कितने पे थ्रो किया? 70 नहीं 87.78 समथिंग, राइट? तो ना अगर अगर समझो ये पर्टिकुलर पर्सन ने 45 पे थ्रो किया होता ना, तो मैंने कैलकुलेट किया 91 पॉइंट समथिंग आंसर आ रहा है, 91 या 92 के आसपास। मतलब अगर समझो ये उसी वेलोसिटी के साथ, अभी ये 36 डिग्री पे थ्रो किया उसने, अगर वही 45 पे थ्रो करता ना तो 91 90 का रिकॉर्ड ब्रेक, 90 का मार्क ब्रेक कर देता वो। ये भी कैलकुलेशन में बताया है, देखो अगर टाइम मिला तो 10 मिनट का तो वीडियो है। चलो लेट्स कंटिन्यू। पीएक्स हाँ पीएक्स की सर। जगह सब्सटीट्यूट करते हैं तो अपना क्या हो जाएगा, ये मास अपॉन वेलोसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम, और ये जो है ना सब दिख रहा है ये ब्ला ब्ला, उसके जगह आप लिखोगे NV² RMS। अभी हम लोग वेट कर रहे थे ना इस चीज का कि कभी हमें टोटल मास मिले, याद आ रहा है क्या? वी वर वेटिंग फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड फाइनली वी गॉट इट। तो M कैसे होता है? M होता है मास ऑफ सिंगल एटम। ये एक्स्ट्रा चीज है, ये एक्स्ट्रा चीज है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। कैपिटल N इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लिखना चाहिए, एटम नहीं।
number of molecules. So that means m into n will give you Vikas, Binita, Rohil, Manthan, मोक्ष, डैनिश। कब का वीडियो ऑफ है तेरा? लगता है बाहर की सैर चाहिए कब का तुझे। नहीं सिर्फ सर देखिए पूरा वो पूरा स्लाइड दिखाओ ना वापस एक बार। बस और हाँ चाहिए? सर, नहीं नहीं इतने इतने। हाँ हो मैं गया सर। नोटिस किया कि बहुत सारे लोग लिख ही नहीं रहे। आपको बाद में पता चलेगा। टोटल मास एम एन क्या होता है? टोटल मास। तो पी एक्स विल बी कैपिटल एम अपॉन वी इंटू वी स्क्वायर आर एम एस। अच्छा, फाइनली वी आर ऑलमोस्ट क्लोज। व्हाट इज मास अपॉन वॉल्यूम? सर v और v स्क्वायर को कुछ नहीं होगा ना, दोनों अलग है ना। अरे वो डियर एक वेलोसिटी है, एक वॉल्यूम है। अरे मास हाँ, अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी है। सॉरी पी सर। एक्स डेंसिटी, इसलिए हंस रहा हूँ मैं, स्टूपिड डाउट था इसलिए। तो पी एक्स इक्वल्स टू रो वी स्क्वायर आर एम एस। मिला? यहाँ तक मिला? हाँ सर। वो आपने पहले इसमें स्मॉल एम लिखे, दूसरे इसमें कैपिटल एम लिखे, दोनों एक ही रिजेंबल कर रहे हैं ना। कैसा? स्मॉल एम इधर बाजू में स्टोरी लिखा पूरा। स्मॉल एम एक सिंगल मॉलिक्यूल का, कैपिटल एम टोटल मास। ओके सर, समझा। हाँ। अच्छा, बाला पूछ रहा था कि सर और है क्या, और लास्ट 2 स्टेप है बस। बट डेरिवेशन समझा क्या आपको यहाँ तक? यस सर। या यस सर। केवल बराबर समझा कि नहीं? केवल अभी मैं इधर से बाण मारूंगा, जो यॉर्निंग करेगा मैं इधर कैमरा से बाण मारूंगा, बाण। और वो बाण सीधा मीटिंग के बाहर लेके जाएगा। लोग साउथ इंडियन बाण नहीं मारेंगे। अच्छा, वैसा जो मारा। ओके, गॉट इट। चलो लास्ट वाला स्टेप। आपको प्रेशर अलोंग एक्स एक्सिस मिला। लेट मी आस्क दिस पर्टिकुलर टू थिंग टू हियर इज देयर एनी लॉ रिलेटेड टू प्रेशर where I can talk about pressure along x, pressure along y, pressure along z, या फिर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन का कोई भी लॉ तुझे याद आता है क्या? सोच ले, सोच। ये चैप्टर में नहीं पढ़ा यार, किसी और चैप्टर में। प्रेशर का नहीं याद आ रहा है? ठीक है। उत्कर्ष, कैन यू टेल मी बड़ी? नेक्स्ट नंबर प्रेक्षा का है। कोई लॉ याद आ रहा है प्रेशर का? प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। प्रेशर इज डैश डैश डिस्ट्रीब्यूटेड इन एन एनक्लोज कंटेनर। वैष्णवी, यशस्वी? यस सर, याद नहीं आ रहा है। स्टेफी? याद नहीं आ रहा। सर वो कंटिन्यूस सिस्टम और इसमें था क्या, डिसकंटिन्यूस में? नहीं, कोई और ट्राई करो। सर पास्कल्स लॉ। किसने बोला ये? सर मैंने बोला। किसने? मतलब मेरे को दिख नहीं रहा है किसने बोला। नाम लो। सर प्रियंका। क्यों गलत है? नहीं, एकदम करेक्ट है, एक्सेलेंट। इट्स पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ याद है? फ्लूइड में पढ़ा था कि प्रेशर इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। हाँ सर, याद आया। हाँ सर। अरे क्या है तुम लोग। ठीक है, तो we know that is px equals to py equals to pz. Isn't it true as per Pascal's law? Yes sir. Okay, तो अगर समझो मैंने ना टोटल प्रेशर कैलकुलेट किया, तो वोंट इट बी, अच्छा ऐसे ऐसे बोल के चले क्या कि ये जो px इक्वल्स टू py इक्वल्स टू pz है, वो कैपिटल p/3 है, दैट इज टोटल प्रेशर अपॉन 3। समझा नहीं है आपको? आपको एक्सप्लेन करता है। अच्छा, जिसको नहीं समझा उसके लिए। अच्छा, मान के चलो आपके पास एक केक है, बड़ा वाला केक है, ओके, और आप इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो।
नाउ इट विल लुक लाइक मर्सिडीज बट इट इज नॉट। हमने केक को कट किया है 3 इक्वल पार्ट में। ओके तो ना अभी मुझे बात बताओ कि ये वाला पार्ट px है, ये वाला पार्ट py है और ये वाला पार्ट pz है। डोंट यू एग्री कि जो मेरा टोटल केक है दैट इज p, उसके 3 टुकड़ों में ये डिवाइड हो रहा है, तो p/3 इज px, p/3 इज py एंड p/3 इज pz। समझा? तीनों का अरे वैल्यू। हाँ हाँ, मतलब मैंने क्या किया, टोटल प्रेशर को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। तो टोटल प्रेशर को 3 इक्वल पार्ट में, अरे यस और नो बोलना जल्दी। यस सर। यस वेरी गुड, बस ये लास्ट स्टेप था। अभी दैट मीन्स मैं px के जगह शायद मैंने कुछ गड़बड़ किया, वेट अ सेकंड। p को अगर मैं p/3 डालूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर ऐसे नहीं कर सकता। डालना रहेगा। नहीं हाँ, क्योंकि मेरे को नहीं बराबर है, नहीं मेरे को नहीं, ऐसे नहीं चाहिए, रॉन्ग हो जाएगा। मतलब px की जगह p/3 डालू तो 3p हो जाएगा टोटल वेलोसिटी को प्रेशर। लेना पड़ेगा। वेलोसिटी को लेके तो वेलोसिटी को लेंगे, लेना पड़ेगा अभी। फिर पास्कल्स लॉ अप्लाई नहीं करेंगे पास्कल से, मतलब होता है पास्कल से बट ये स्टेप में नहीं होगा, तो उसके लिए वो ओल्ड मेथड से जाना पड़ेगा। तो आई एम चेंजिंग माई अप्रोच गाइज, लेट्स नॉट यूज पास्कल्स लॉ। तो इसको पी कंसिडर करते हैं, इनिशियल प्रेशर, टोटल प्रेशर स्टार्टिंग से यहाँ तक, एंड वेलोसिटी को एक्स में रहने देते हैं, वेलोसिटी को रिप्लेस मारते हैं। तो व्हाट कैन आई डू यार? Sir, but the pressure is in terms of velocity along x-axis. Then फिर आपने वो x वाला क्यों हटा दिया? अरे आंसर मैच नहीं हो रहा है, मैं दूसरा वे ढूंढ रहा हूँ पास्कल्स लॉ यूज करके। हाँ Sir, बोलना बड़ी। using Pascal's law करके देखो, फिर आगे शायद कुछ तो होगा जिससे हम वो अरे नहीं, फिर वो यहाँ पे 3p आएगा, यहाँ पे 3 मतलब px के जगह तू p/3 डालेगा। हाँ बोलो। px का वैल्यू अपने पास है ना, तो मतलब तीनों का वैल्यू यही रहेगा, डेंसिटी इंटू वी स्क्वायर। तो तीनों का ऐड नहीं कर सकते डायरेक्ट। बट ऐड करके वो 3 बनेगा ना, मेरे को 1/3 चाहिए फॉर्मूला में, दैट्स व्हाट आई एम नॉट गेटिंग। सिमेट्री पे वेलोसिटी तो और टेक्स्ट बुक में ये लोग ने वेलोसिटी लिया है। हाँ दैट आई नो रे। what if I do it like this, p 1/3 1/3 रुको एक मिनट। सर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अरे सुनो, जो जो इन्होंने प्रेशर कैलकुलेट किया है ना, आई नो दैट दे आर टॉकिंग अबाउट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस ओनली, और उन्होंने फोर्स अलोंग एक्स से लिया, बट दे आर कंसिडरिंग दिस एज अ टोटल प्रेशर। तो उन्होंने इधर एफ एक्स अपॉन एल स्क्वायर किया, बराबर, यहाँ तक एंड तक आएंगे। इधर पे उन्होंने रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी नहीं लिया होगा, एवरेज वेलोसिटी लिया होगा। आई रिपीट अगेन, डोंट वरी। सर बट टोटल क्यों लिया? वो गलत होगा ना? कहाँ पे? हाँ पता है, लाइक हाँ पार्शली पार्शली करेक्ट किया है, इसीलिए मैं वो पहला वाला मेथड प्रेफर करता हूँ, बट वो और लेंदी हो जाता है। वेट अ सेकंड, एवरेज वेलोसिटी देन दैट इज v will be like this, v square will be like this। तो इसको हम लोग डायरेक्टली स्क्वायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ऐसे हो जाएगा और ये v स्क्वायर हो जाएगा। इसको vx ही बोलते हैं,
जस्ट अ सेकेंड है गाइस, जस्ट अ सेकेंड, हो गया। तो ये RMS नहीं है, ये Vx है, Vx, then Vx equals to Vx square equals to Vy square equals to Vz square equals to VRMS square upon 3। या फाइनली आई गॉट इट। चलो अभी बताता हूँ, सुनो। जो प्रेशर का फॉर्मूला है ना, प्रेशर का फॉर्मूला दैट इज फोर्स अपॉन एरिया। माइक 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 देखो किसका तो, प्लीज टर्न ऑफ योर माइक। अभी देखो, तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो एफ एक्स अपन ने पुट किया, तो एफ एक्स के बाद ये पुट किया, उसके बाद आपको एल क्यूब मिला, एल क्यूब वॉल्यूम किया, यहाँ तक सब समझा। नाउ अभी मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ एक्स के वेलोसिटी को ऐड कर रहा हूँ, करेक्ट। तो मुझे सिर्फ वी एक्स मिलेगा ना, मैंने वी आर एम एस कंसिडर किया था ना, तो वो वी आर एम एस में मेरा वी आर एम एस अलॉन्ग एक्स एक्सिस होना चाहिए था। तो जो मैं पहला डेरिवेशन लिखा, तो उसमें वी आर एम एस एक्स शुड बी देयर, बट इट इज नॉट। सो व्हाट डू वी हैव, वी एक्स, मतलब वी आर एम एस नहीं कंसिडर कर रहे, डायरेक्टली इसका मीन निकाला, एवरेज निकाला, नॉट रूट, एवरेज। तो वी एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू वी एक्स वन स्क्वायर प्लस वी एक्स टू स्क्वायर प्लस 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 अपॉन एन। एन ये साइड चला जाएगा, and when you take that particular n to other side you get this particular step। ये सर step Vx is equal to Vx1 plus Vx2 upon n वैसा होता है ना सर, ओरिजिनल फॉर्मूला। हाँ, बट वो कैसा है, वो नॉर्मल Vx को टू ऐड कर रहा है। अभी मैं स्क्वायर टर्म को ऐड कर रहा हूँ, तो स्क्वायर टर्म को ऐड कर रहा हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी स्क्वायर टर्म मिलेगा। समझा? हाँ दैट इज द रीजन। तो अभी ये होने के बाद व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इज, ये नहीं समझा कि आपने वो प्रेशर को मतलब अलोंग एक्स एक्सिस के टर्म्स पे फॉर्मूला आपने उसको पी ले लिया, वो वाला नहीं। बिकॉज ना एक्चुअली ना ये स्टेप से मैं भी एग्री नहीं करता हूँ, बट सीन क्या हो रहा है कि वी हैव टू टेक इट दैट वे, अदरवाइज यू आर नॉट अचीविंग द एंड रिजल्ट। मतलब आई नो दैट दिस इज द प्रेशर अलोंग एक्स एक्सिस दे आर टॉकिंग अबाउट, बट ओवर हियर दे हैव टेकन कंसिडरेशन ऑफ, अरे कैसे बोलूं तुझे, मतलब अगर वो एक्स एक्सिस के अलोंग बोल रहे तो भी बोलने दे, वो एरिया भी तो एक ही फेज का ले रहे हैं। देख फॉर एग्जांपल आई ट्राई टू एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर थिंग टू यू। समझिए वेसल है और ये फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस है, बराबर। तो ये एरिया जो ले रहे हैं ना, वो एरिया भी क्या ले रहे हैं, एक ही एरिया ले रहे हैं, एक्स एक्स सरफेस वाला ही एरिया ले रहे हैं। अगर समझ मैं टोटल प्रेशर बोलता हूँ एंड देन सारा एरिया कंसिडर नहीं करता हूँ, देन वो रॉन्ग होगा। और मतलब एक लाइक सारा एरिया कंसिडर करता हूँ, देन वो रॉन्ग होगा। तो अगर समझ में यहाँ पे एफ एक्स अपॉन 6L स्क्वायर लिखता, तो वो रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि मैं टोटल सरफेस एरिया ले रहा हूँ एंड फोर्स सिर्फ एक ही डायरेक्शन में कंसिडर कर रहा हूँ। आर यू गेटिंग इट? हाँ सर। यस सर, समझा। चलो लेट्स नाउ मूव ऑन विद द नेक्स्ट कंसेप्ट। तो ये यहाँ तक तो आपको सेम समझा, एन वी स्क्वायर डाला, मास इंटू एन, कैपिटल एम डाला, मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी डाला। बट आफ्टर दैट दिस इज द स्टेप दैट यू हैव टू लुक फॉर। मतलब अभी मैंने क्या किया, ये स्टेप के बाद P इक्वल्स टू रो वी एक्स स्क्वायर के बाद ये, एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, करेक्शन करना पड़ा आपको, थोड़ा करेक्शन कर दो चलो नोट्स में, मतलब आप जहाँ पे लिख रहे हो वहाँ पे। Tell me once it's done.
सर डन. No, sir, wait. Okay. हो गया? एक मिनट सर, एक सर डन. ओके, तो नाउ व्हाट वी आर गोना डू, यहाँ पे देखो, जैसे हम लोग ना अभी vx के अलोंग vy के अलोंग vz के अलोंग स्पीड सेम क्यों ले रहे हैं? बिकॉज वी से दैट द वेलोसिटी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर गैस मॉलिक्यूल. वैसे भी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि गैस कौन से डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा, बराबर. सो वी एज्यूम दैट वेलोसिटी इज इक्वल. सो लेट्स से कि let us consider or velocity, speed, it's same along all axes, all axes. सर इसमें आरएमएस वापस कैसे आया? हाँ, अभी आरएमएस टोटल है ना. देख, याद है मैंने क्या मिस्टेक किया था? मैं सिर्फ एक्स का बोल रहा था और मैंने आरएमएस से इक्वेट किया था उसको, मैंने बाई 3 लिया ही नहीं. तो जैसे टोटल प्रेशर अपॉन 3 कैसे होता है, वैसे वी आर एम एस अपॉन 3 होता है. अभी समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? वो मेरा गलती था उसमें एक नहीं स्टेप सर, में. कंफ्यूज. अरे मैंने फॉर्मूला याद कर क्या लिखा था वी आर एम एस का? वी आर एम एस स्क्वायर इक्वल्स टू वी एक्स वन स्क्वायर प्लस वी एक्स टू स्क्वायर प्लस 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 अपॉन एन लिखा था. बट एक्चुअल में आई शुडंट से दिस, I should say Vx square equals to this value. My point is that मैंने गलती से VRMS लिखा था, but VRMS total होता है. That is, when I should talk about VRMS, I shouldn't focus on X only. I should focus on Y, I should focus on Z. That is total होना चाहिए. अभी समझा? हाँ सर, समझा. हाँ, वो गलती. Extremely sorry guys, extremely sorry. My bad. तो अभी क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे? स्पीड इज अलोंग सेम, स्पीड इज सेम अलोंग ऑल एक्सेस हो गया. तो जहां पे भी आपको वी एक्स स्क्वायर दिख रहा है उसके जगह वी स्क्वायर आर एम एस बाई 3 डाल दो. तो ये रो पी दिख रहा है उसके जगह डाल दो. देयरफॉर पी विल बी रो वी स्क्वायर आर एम एस बाई 3, और यू कुड मॉडिफाई इट एंड यू विल गेट फाइनल इक्वेशन एज 1/3 रो वी स्क्वायर आर एम एस. बोला, वी आर डन विद इट. क्या समझा ये पार्ट यहाँ तक? यस सर. ओके, नाउ बोलो. ऑफिस समझा सकते, लाइक पूरा एग्जैक्ट ऑफिस? हाँ, पूरा डेरिवेशन ना. यस सर. ओके, पहले ये लिख लो जिसको लिखना है वो. सर लास्ट स्लाइड दिखाइए ना. मेरे को पता ही था इसलिए तो दिखा रहा हूँ.
सर डन। सर 1 minute सर। डन सर। सर प्रीवियस स्क्रीन दिखाओ ना 2 मिनट। जन चलो अभी अभी सुनो गाइस। अरे यार ये ना रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी स्पीड ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ केटीजी थोड़ी सी चीजें बची थी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन तो डिलीटेड है। सर ये पीडीएफ आज शेयर कर दोगे ना ग्रुप पे? अरे क्या है तू भी यार कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे पूछ रहा है जैसे मेरे को जानता ही नहीं है, अभी पहचानता ही नहीं। अच्छा सुनो ना, एक और थोड़ा मैं बोल रहा था कि 15 मिनट का और बोर्ड का टॉपिक करेंगे, क्योंकि मतलब एक सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा पूरा टॉपिक का केटीजी का। चलेगा ना? हाँ फिर मतलब बोर्ड स्टूडेंट्स को मैं लीव कर दूंगा 15 मिनट के बाद। ओके चलो सर। अरे खुश हो गए, कोई नाचो नाचो बोल रहे। सर कभी ऐसे सीईटी वालों को भी छोड़। अरे तू जा सकता है बोर्ड वालों के साथ, यू कैन गो। विकास प्रथम, कब का कैमरा ऑफ है तुम लोगों का? सर आज आप बाहर नहीं निकाल रहे किसी को, मैं भी कैमरा ऑफ करती हूँ। ना ना बराबर बोला तुमने, आई शुड रिमूव निकालो। एवरीवन। वैष्णवी 9 बजे आज तो सुबह जल्दी उठ के अगर तू समझ रेडी होके बैठती वैष्णवी तो तुझे 9 बजे निकलने की नौबत ही नहीं आती। प्रथम रिमूविंग यू, बट ठीक है कोई बात नहीं। रविराज रिमूविंग यू, पुष्टि रिमूविंग यू। नो सर। मीत हाँ सर। हाँ केवल कैमरा ऑन कर रहे हैं। आकाश मी सांगितलेलं सर तुम्हाला कॅम बंद करतो. सिद्धू को 5-5 मिनट जाना ही पड़ता है। सर मैंने मैसेज किया था पर आपने रिप्लाई नहीं दिया करके वैसे ही बैठा हूँ। हाँ ठीक है जाओ सर अभी। आप 5 मिनट जाके। यस सर। Aditi, you are allowed to turn off the camera. आंगी आंगी तो है चालू। रोहिल तो भाई ऑन ही नहीं कर रहा, उसको तो निकालना ही पड़ेगा। ऐसा डिसरिस्पेक्टिंग नहीं चलेगा। चलो डन। अरे मैं डेरिवेशन में बिजी था ना, तो मेरे को थोड़ा ऑफ टॉपिक नहीं जाना था, इसलिए मैं बैठने दिया उनको, बोला इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है पढ़ ले। चलो रूट मीन स्क्वायर स्पीड के कुछ फॉर्मूलाज देखते हैं। देखो 2 मिनट में हो जाएगा, ध्यान से ऑब्जर्व करना। पी क्या होता है आज ही पढ़ा था, 1/ρ v स्क्वायर RMS। मान के चलो मुझे VRMS को एक तरफ रखना है, व्हाट विल आई डू? आई विल शिफ्ट एवरीथिंग टू द लेफ्ट हैंड साइड। तो ये क्या हो गया 3p अपॉन डेंसिटी इक्वल्स टू v स्क्वायर RMS। बट डियर अभी अपने को स्क्वायर रूट लेना है, तो VRMS विल बी अंडर रूट ऑफ 3p/ρ। ये हो गया आपका VRMS का वैल्यू, अंडर रूट ऑफ 3p अपॉन ρ।
तो यू गॉट VRMS का वैल्यू। अभी इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? सेकेंड चीज, आपको पता है एक फॉर्मूला है कुछ तो डेंसिटी का, कुछ तो होता है, मतलब ऐसा शायद मास अपॉन वॉल्यूम करके कुछ तो ऐसा होता है, या करेक्ट? यस सर। So let's try to put that over here. डेंसिटी के जगह मास अपॉन वॉल्यूम पुट करते हैं, तो व्हाट इज गोना हैपन? वॉल्यूम ऊपर जाएगा। हाँ, तो ये हो जाएगा 3PV अपॉन मास। बट आपको पता है PV इक्वल्स टू क्या होता है? PV इक्वल्स टू क्या होता है? NRT होता है। वेरी गुड। तो PV के जगह आप NRT भी लिख सकते हो। तो VRMS का एक और फॉर्मूला हो गया आपके पास, दैट इज 3NRT अपॉन M। तो देखो मेरे पास कौन से फॉर्मूला मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। दिस वन √3p/ρ, बट वो सेपरेटली याद करने की क्या जरूरत अगर तेरे को ये याद है तो। सो दैट्स व्हाई आई डोंट रिमेंबर दिस फॉर्मूला। सेकंड, दिस वन √3pV/m टोटल मास, ये नहीं याद रखते। I'll give you one more replacement. आपको पता है N बोला था किसी ने मुझे, मास अपॉन मोलर मास, M अपॉन MO। Let's put that over here. हाँ, तो VRMS will be √3, N की जगह आएगा मास अपॉन मोलर मास। क्या किया मैंने? देखो मैंने जस्ट N को सब्स्टिट्यूट किया M अपॉन M0 से। So let's see what is gonna have cancel out. MM cancel out. What we are gonna get? We are gonna get √3RT upon M0. इजी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। हाँ सर। यस सर। ओके, अभी ध्यान से सुन। इनफैक्ट ये इंपॉर्टेंट इतना है कि इसके ऊपर आई गेस प्रीवियस एग्जाम्स में लाइक लास्ट 6 से 7 साल में 3 से 4 बार इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। समझ रहे हो? ये फॉर्मूला के ऊपर VRMS √3RT अपॉन M0। अब ये फॉर्मूला में क्या बोलता हूँ मैं, सुनो। VRMS इज इक्वल्स टू √3RT अपॉन M0 लेने के बाद 3 इज कांस्टेंट, R is constant, M0 is constant. Can you then conclude कि VRMS is √3? Excellent ना, directly proportional to square root of temperature. तो ये अपने को रिलेशन मिल गया। And since it is directly proportional, we can do 1-2 का 1-2. That is 1-2 का 1-2. ये समझा? आंगी समझा? ये आंगी समझा? हाँ, ओके, गॉट इट। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ साउंड देखो। स्पीड ऑफ साउंड का वैल्यू क्या होता है? ये वाला फॉर्मूला 11th में पढ़ा था, ये जस्ट आपके नॉलेज के लिए दे रहा हूँ। 11th में पढ़ा था आपने स्पीड ऑफ साउंड। दिखाइए ना। एडियाबैटिक कंडीशन, एडियाबैटिक कंडीशन साउंड का तो गामा p/ρ होता है। तो मतलब मैं कैसे याद रखता हूँ, अगर आपको गैस का स्पीड निकालना है तो इधर 3 होता है, 3p/ρ। अगर साउंड का स्पीड निकालना है तो गामा p/ρ। 3 के जगह में गामा याद रखता हूँ। मेरे फॉर्मूलाज देखो, ये VRMS का फॉर्मूला देखो क्या था, हम लोगों ने पढ़ा था √3RT अपॉन M0। और अभी यहाँ पे क्या है देखो, गामा RT अपॉन M0। समझा? यस सर। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपको। और ना गामा का पता है ना वैल्यू, CP/CV, लास्ट चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स, याद आ रहा है? यस सर। ओके, वेरी गुड। ओके, ये लास्ट टॉपिक है बोर्ड स्टूडेंट के लिए। बट बिफोर आई बिगिन विद दिस टॉपिक, आई वांट टू आस्क यू वन सिंपल क्वेश्चन गाइस। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको पूछने वाला है, एकदम सिंपल। अगर समझो अपने पास जो एयर मॉलिक्यूल्स है, उन एयर मॉलिक्यूल्स का, या फिर चलो मान के चलो ऑक्सीजन का ही लेते हैं, ऑक्सीजन का जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है वो 11,200 मीटर पर सेकेंड हो गया, तो क्या होगा इससे? क्वेश्चन है। अभी देखो, अभी मेरे सराउंडिंग में जो ऑक्सीजन गैस है ना, उसका नॉर्मल स्पीड जो है ना अभी करंटली वो 497 मीटर पर सेकेंड है। दैट इज एक सेकेंड में सोनिया 497 मीटर ट्रैवल कर रहा है गैस, ऑक्सीजन। बट अगर यही स्पीड 11,200 हो गया तो क्या होगा? याद करो। इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर बेसिक नॉलेज, और पिछली कितनी चीजें याद आती है। टेम्परेचर बताइए। टेम्परेचर नहीं, ये देख के कुछ हिंट नहीं लग रहा है आपको? ये नंबर कहीं पे सुना नहीं लग रहा है क्या? करेक्ट। किसने बोला ये? श्रवण। वेरी गुड। तो
तो ना एस्केप वेलोसिटी है, किसका वेलोसिटी है? अर्थ से एस्केप करने वाला। अगर आपका ऑक्सीजन 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से जा रहा है तो पूरा का पूरा ऑक्सीजन अर्थ को छोड़ के बाहर चला जाएगा। then the scenario that would happen is that everyone would die। समझ रहे हो? अगर ये 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड ऑक्सीजन अचीव कर पाया तो इट विल एस्केप अर्थ्स एटमॉस्फेयर। व्हाई? बिकॉज अर्थ का वेलोसिटी उतना ही है। एंट्रेंस के लिए इसको याद रखना है। इफ you can write it as note also, if root mean square velocity becomes equal to escape velocity, जाने दो, आप भी क्या याद रखोगे, लिखो पर जाने दो, नोट में नहीं ऐड कर दो। if root mean square velocity becomes equal to escape velocity, then the gas will escape Earth's atmosphere. What is going to happen with gas? Gas will escape Earth's atmosphere या फिर planet's atmosphere. चलो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं अभी। इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर इन काइनेटिक एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। एकदम सिंपल है, आसान भाषा में बोलूंगा तो और सिंपल हो जाएगा, बट थोड़ा सा टफ करके पढ़ाना काम है क्योंकि हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो प्रेशर का वैल्यू क्या होता है? 1/ρ v²RMS। अभी डेंसिटी का वैल्यू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। सारी चीजें देखो मैं सेम रिपीटेटिव मार रहा हूँ। तो v²RMS होगा, यहाँ पे p है। इधर का जो 3v दिख रहा है आपको वो लेफ्ट साइड लेके आते हैं तो ये हो जाएगा 3pv। एंड जो टोटल मास है वो है स्मॉल m/n v²RMS। एम आई करेक्ट गाइस? यस सर। तो अभी अगर समझो मैं दोनों साइड हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं, सो मल्टीप्लाइंग बाय हाफ on both sides, so we get left hand side पे 3/2 pv and right hand side पे n बाहर लेके 1/2 mv²RMS। Sir, sir, but PV also equals to work done, na? Yes, no problem with that, but I am not substituting it as work done yet। you are totally correct कि PV इक्वल्स टू वर्क डन होता है, बट हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे अभी उसको, समझा? ओके सर। ओके, तो अभी क्या कर रहे हैं हम लोग? कंटिन्यू कर रहे हैं गाइस ये टॉपिक से, ध्यान से सुनो। व्हाट इज हाफ mv²? रे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। बट इजंट दिस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल? क्योंकि एक सिंगल मॉलिक्यूल का मेंशन है। But if you see, I have total n number of molecule over here। हाँ, तो ये आपको combined क्या देगा? टोटल काइनेटिक एनर्जी देगा ना। सो ये वाला पार्ट, सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इज गिवन एज 3/2 pv। हो गया आपका पहला फॉर्मूला रेडी। इजी, काइनेटिक एनर्जी 3/2 pv, समझा? यस और नो? यस सो। व्हाट अबाउट पीवी? पीवी क्या होता है? पीवी इक्वल्स टू क्या होता है? जल्दी जल्दी बोल। पीवी इक्वल्स टू क्या होता है? एनआरटी। ले, दूसरा फॉर्मूला मिल गया। और क्या चाहिए तेरे को? अरे पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, दूसरा फॉर्मूला रेडी। आपको नाक का लॉजिक याद है? नाक करके कुछ सिखाया था सर ने। आर इक्वल्स नाक बोला था, NaKB। हाँ, तो इसको पुट करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? 3/2 n, आर के जगह लिखेंगे NaKB इंटू T। तो अभी देखो ध्यान से क्या होगा यहाँ पे। आपको ये पता है? अरे कोई तो मुझे बताओ, ये n इंटू Na क्या होगा? n इंटू Na, कैपिटल N, राइट? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। तो ये NKBT हो गया काइनेटिक एनर्जी के 3 फॉर्मूला डन। अभी ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर कांस्टेंट कंसीडर किए, KB तो वैसे भी कांस्टेंट है,
3/2 वैसे भी कांस्टेंट है एंड टेम्परेचर भी ऐसे. So we could conclude that kinetic energy is directly proportional to temperature, provided that जितना आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो मतलब प्रोवाइडेड नहीं, बेसिकली जितना आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना क्या बढ़ेगा, उतना काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा. हो गया सॉल्व. That's it for boards. I guess our almost half chapter is over. Only half chapter now remains that we will complete in the next lecture. Now board students के लिए homework क्या है? Boards क्या है? In fact, CET students को भी ये same homework है. The first homework that you have to do is this, right? Derivation. Derivation of pressure of gas 2 times. And then I want you to solve few numericals. Okay, I'll show you those numericals. Actually वैसे numerical है कि आपको खाली फॉर्मूला में डेटा पुट करना है. So that would be like मैं करते बैठूंगा इतने easy, तो उसमें हम लोग कुछ और इंटरेस्टिंग पढ़ लेंगे. I'll show you. I'll also tell you the concept. ये नहीं, ये भी नहीं, कंसेप्ट नहीं हुआ. ये वाला देखो, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस एट 30 एंड 120. 2 टेम्परेचर दिए और VRMS का रेशियो बोला है. क्या हमने ये फॉर्मूला आज पढ़ा था, स्क्वायर रूट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? यस सर. 1/2 का 1/2 करना सिखाया था मैंने तुमको. यस. तो आराम से आ जाएगा ना, आप अगर सॉल्व करोगे तो. ओके चलो. यस सर. ओके, तो ये वाला होमवर्क है सबके लिए. ये वाला होमवर्क है. हाँ, स्क्रीनशॉट HW लिखा है देखो, या फिर मैं नंबर बताता हूँ, वो नंबर फिर करो. नहीं ले लो, SS ले लो. चलो नेक्स्ट. ये वाला क्वेश्चन, ये वाला भी ट्राई करो. नहीं आया तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डाउट सॉल्व करूंगा. 12th वाला PV इक्वल्स टू NRT फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है. खाली दो डिफरेंट फॉर्मूला लेना है, रेशियो लेना है. थर्ड वन, नहीं ये मैं करूंगा. हाँ, ये वाला आराम से कर लोगे. दिस वन मेरे को क्वेश्चन नंबर नहीं पता है, ये करना. KTG के न्यूमेरिकल एकदम फालतू न्यूमेरिकल है, एकदम फालतू. नेक्स्ट, ये व्हाट अबाउट CET? एकदम इजी है. मतलब लाइक वही चीज है जो तेरे को कैसे फॉर्मूला पता है, बेसिक कंसेप्ट पता है, डन. अभी अब करेंगे ना हम लोग, आज CET के सम्स करने वाले, बिगिन करने वाले आज. ये वाला भी करना है 17, ये लास्ट है. तो टोटल आई गेस मैंने 4 सम दिए और 2 बार डेरिवेशन दिया है. करेक्ट? Yes. Okay. Now only board students can leave the lecture. हाँ बोलो. इसका रिकॉर्डिंग कल तक मिल सकेगा क्या वो ऐप से?